يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ تیار کر لینا چاہیے. جہاں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے کا ایمان اور اس کے نیک اعمال کام آئیں گے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے کے اندر. ہم لوگ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن جو روزہ ہے اس کے بہت ہی قریب ہے. ابھی ایک ہفتے میں انشاءاللہ ٹھیک شاید 7-8 دن باقی رہ گئے ہیں کہ رمضان شروع ہونے والا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور دوزخ سے آزادی عطا کرتا ہے بندوں کو. اس لیے یہ رمضان کے چند دن ہیں، مختصر دن ہیں، ان میں عبادت کر لینا چاہیے. ہم سب ماہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. ہر انسان رمضان میں کچھ نہ کچھ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں
जन्नात के अंदर बुलंद दर्जात हासिल करना चाहते हैं, उनको भी सोचना चाहिए हम भी अहले ईमान हैं, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में बुलंद दर्जात पाना चाहते हैं, हमको भी रमजान का इंतजार है, तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हमने इसकी क्या तैयारी की है, हम रमजान में क्या करने वाले हैं, अगर हमारी जिंदगी में रमजान नसीब होगा हमने कितनी तैयारी की है। तो रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान नाजिल फरमाया। रमजान के महीने की जो सारी घड़ियां बरकत वाली है, एक एक मिनट भी कीमती है रमजान का, इसलिए कि रमजान के महीने की भलाइयां खैरात जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होती है। और रमजान के दिन में हम रोजा रखते हैं, रात में क़ियामुल लैल करते हैं। रमजान का महीना नमाज से कुरान से आबाद रहता है, इसलिए भी हमको इसमें हिस्सा लेना है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं, सरकत जो शयातीन है उनको जंजीरों में जकड़ देते हैं। इसलिए रमजान के अंदर नेकी करना आसान हो जाता है। और माह रमजान के अंदर एक रात ऐसी है, एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, अफजल है। वो रात जिसको मिल जाए वो नसीब वाला है। उस रात से जो महरूम हो जाए यकीनन वो इंसान बहुत ही महरूम है, बदनसीब है, बदकिस्मत है। हमें उस रात को पाने की कोशिश करना चाहिए। रमजान के महीने में किताब के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। जो इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करना चाहता है, इबादत करना चाहता है, उसके लिए रमजान का महीना एक कुशादा मैदान, एक फील्ड है, जितना भागना चाहे भाग सकता है, जितनी नेकियां करना वो कर सकता है। इसलिए कि माह रमजान में नेकियों का अजर और सवाब बढ़ जाता है, गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते, मिटा देते हैं रमजान की इबादतों की बरकत से। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अस्सलावातुल खम्स वल जुमातुल जुमा व रमजान इला रमजान मुकफ्फिरातुन बैनहुन्ना इज़ा जुतनिबल कबाइर। 5 वक्त नमाजें एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान के जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो मिटा देती है। जैसे फजर की नमाज हमने पढ़ा, जोहर तक हमसे छोटे गुनाह हो गए, जोहर की नमाज पढ़ने से वो दोनों नमाजों के दरमियान के जो छोटे गुनाह थे, सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। उसी तरह जुमा, ये जुमा हमने पढ़ा, आइंदा जुमा की नमाज हम पढ़ेंगे तो एक जुमा पढ़ने के बाद आइंदा जुमा भी अगर हम पढ़ेंगे, इस हफ्ते के अंदर जो छोटे छोटे सगीरा गुनाह हमसे सरगद हुए अल्लाह तबारक व तआला उसको मिटा देंगे जुमा की बरकत से। उसी तरह एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान, इस रमजान से लेकर आइंदा रमजान तक हमसे जो सगीरा गुनाह सरगद होगी, वो आने वाले रमजान में इबादत करेंगे तो पूरे 11 महीने के जो सगीरा छोटे गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाएंगे रमजान की इबादतों की बरकत से। शर्त है कि इंसान कबीरा गुनाहों से बचे, कबीरा गुनाहों से दूर रहे, बड़े बड़े गुनाहों से। छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े गुनाह किसी भी इबादत से माफ नहीं होते। हमेशा ये जहन में रख लें, कोई भी ऐसी इबादत नहीं है इस्लाम के अंदर जो कबीरा गुनाह को माफ करा दे, नहीं है। अब कुछ भी सुनते होंगे उम्रे के बारे में, हज के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, गुनाह माफ हो जाते हैं, वो सब सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह है। कबीरा गुनाहों के लिए कंडीशन से शराइत है, वो पूरे शराइत पर उतरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा, नहीं करेगा वो भी क़यामत पर डिपेंड है। यहाँ कंफर्म नहीं होता कि आप माफ कर देंगे। कबीरा गुनाह की कंफर्मेशन जो है यकीन आखिरत में ही है, दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने कि कबीरा गुनाह माफ होगा। हम वो कंडीशन पर उतरेंगे, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को माफ कर दे। तो कबीरा गुनाह माफ नहीं होते, वो तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, बहुत सारे शराइत हैं, उस शराइत पर उतरना चाहिए, वो अलग मौजू है। तो बहरहाल ये रमजान का जो महीना आया है मुसलमानों के इत्तिहाद की निशानी। रमजान के महीने में सब मिलजुल कर रखे पूरे मुसलमान, देखिए मस्जिद की तरफ सब दौड़ कर आते हैं, इफ्तार के वक्त देखिए, सहरी करके फजर में देखिए, ऐसा लगता है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हैं, यूनिटी है मुसलमानों के अंदर। तो इत्तिहाद इत्तेफाक का जो मंजर है वो रमजान में नजर आता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, ये उम्मत एक उम्मत है, ये उम्मत एक उम्मत है। रमजान में ऐसा लगता है
रमजान में ऐसा लगता है कि सब मुसलमान एक है, बस आ रहे हैं, नमाजों को आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं तो उनका आना जाना मस्जिदों को ऐसे लगता है कि मुसलमानों के अंदर वाकई इत्तेहाद है। रमजान के महीनों में मुसलमानों के लिए बहुत सारी इबादतें जमा हो जाती है। रमजान के महीने में बहुत सारी इबादतें करने की, लेकिन खासकर सबसे बड़ी इबादत नमाज। हमेशा ये नमाज ही है, लेकिन रमजान में भी नमाज सबसे बड़ी इबादत है। हम लोगों को चाहिए कि हम रोजे की मदद से नमाज पढ़ें, क्योंकि इंसान जब भूखा रहता है, प्यासा रहता है, उस वक्त नमाज पढ़ने का शौक ज्यादा होता है। रोजे की हालत में आप देखिए, खुद ब खुद आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, खाने पीने अय्याशी के दिन में सोना चाहता है इंसान, गफलत बरतता है। लेकिन जब इंसान भूखा रहता है, आप रोजे की हालत में महसूस करते हैं नमाज को जाना, ख्याल आता बाकायदा नमाज को जाना है। बेरोजे की हालत में ख्याल नहीं आता नमाज का, लेकिन रोजे की हालत में ज्यादा ख्याल आता है कि मुझे नमाज को जाना है। तो रोजे के जरिए हम नमाज पढ़ने की मदद ले सकते हैं, मदद हासिल कर सकते हैं। और नमाज खासकर रमजान के अंदर रात में ज्यादा पढ़ना चाहिए। दिन में तो फर्ज नमाज चाहिए अपनी जगह पर, रात में ज्यादा से ज्यादा रमजान में नमाज पढ़ना चाहिए, नफिल नमाजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इंसान माह रमजान में क़ियामुल लैल करता है, रातों में जो है नफिल नमाजें पढ़ता है, चाहे तरावीह की शक्ल में हो, तहज्जुद की शक्ल में हो, ईमान के साथ पढ़ता है, सवाब की उम्मीद से पढ़ता है, उसके सारे गुनाह जो उसने अब तक किए माफ कर देते, बख्श दिए जाते हैं। यही छोटे गुनाह है जिसका जिक्र मैंने अभी किया। रमजान के अंदर एक चीज जो है ज़कात और सदका खैरात भी है। हालांकि ज़कात और सदका खैरात तो रमजान में कर सकते हैं, वो कोई चीज नहीं, तो साल भर में आप सदका खैरात कर सकते हैं। लेकिन ज़कात का जहां तक मसला है वो रमजान के साथ खास नहीं। इस पर उलमा बयानात देते रहते हैं। मैं इशारा भी कर रहा हूँ कि जो मौजू पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि रमजान फिक्स नहीं है ज़कात देने के लिए, तो हमेशा दिमाग में याद रखिए ज़कात जो है वो साल के साल है। आपके पास जब माल दौलत आया उस दिन से एक साल होना वो ज़कात का टाइम है। वो आपके पास माल दौलत कब आता है किसको क्या मालूम, हो सकता है जनवरी में आपके पास 25 लाख रुपए आ जाए, तो जनवरी से जनवरी आपकी ज़कात है। आपके पास हो सकता है फरवरी में आ जाए, जिस महीने से आपके पास दौलत आई, इतनी दौलत पर इस पर ज़कात फर्ज होती है, उस महीने से एक साल होने पर ज़कात है। वो मुसलमानों के हर महीने में निकल सकती है, किसी की जनवरी में, किसी की फरवरी में, किसी की मार्च में, किसी की जून में, जुलाई में, अगस्त में, ऐसे हर मुसलमान की ज़कात अलग महीने में निकलती है। लेकिन मुसलमानों ने पता नहीं क्या रिवाज बना लिया है तो रमजान में निकालते। ऐसा नहीं, इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं, रमजान में ज़कात निकालना ऐसी बात नहीं है। साल होने पर ज़कात निकालना है, आपके माल पर साल गुजरना है। आपके माल पर जब से आप साहिब निसाब हुए उस डेट से एक साल गुजरने पर आपको ज़कात देना, वो किसी भी दिन साल हो सकता है। हाँ, जिन लोगों की ज़कात रमजान में है और रमजान में निकाले, जिनको रमजान में निकलती है ज़कात, तो मेरा ज़कात निकालना चाहिए। इससे क्या होता है, सदका करने से, ज़कात देने से हमारे नफ्स की तरबियत होती है। क्या तरबियत? देने का सीखना चाहिए। मैं इससे पहले बताया 10 रुपये से ही हम देने की ताकत रखते हैं, 10 रुपए देना। देने की तरबियत अपने नफ्स की होती है। दूसरों पर एहसान करना, अरे 5 रुपए ही सही हम दूसरे पर एहसान कर रहे हैं, जो मोहताज है, मिस्कीन है, जरूरतमंद है, उसे हम देकर एहसान कर रहे हैं। तरबियत होती है हमारी देने की, सामने वालों पर हमदर्दी करने की। ये जो तरबियत होती है, नफ्स पर इसका असर पड़ता है, हमारे माल पर असर पड़ता है, खर्च करने से औलाद पर असर पड़ता है। तो मेरी बात, खर्च करने का ताल्लुक माल औलाद सब पर है। खर्च करेंगे तो माल महफूज रहेगा, औलाद की अल्लाह हिफाजत करेगा। ये सारी चीजें, बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं, खुशहाली आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था। वो आपके हस्बैंड तो जिंदगी भर सकी थे, लेकिन रमजान के महीने में बहुत ज्यादा सखावत करते थे। हदीस में आता है कि रिह मुरसला, तेज आंधी, तेज हवाएं चलती है ना, ऐसी हवाएं चलती है कि आदमी चल नहीं सकता। हवा को से आदमी भी जो है कभी डगमगा जाता है, कभी गाड़ियां डगमगा जाती है। ऐसी तेज आंधियां निकलती है। अल्लाह के नबी उस आंधी की तरह खर्च करते थे रमजान के अंदर, उस आंधी की तरह खर्च करते। इसलिए रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई सफी नहीं है। तो भाइयों, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। उसके बाद रमजान के अंदर रोजा जो अहम इबादत है, रोजा अहम इबादत है, दीन इस्लाम की बहुत बड़ी निशानी है। और रोजे के जरिए से हम तकवा हासिल करते हैं। रोजे के जरिए से हम तकवा, परहेजगारी की जिंदगी सीखते हैं। रोजा क्या चीज है? सुबह सादिक से लेकर, रोजा किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए ना। सुबह सादिक
جو शहरी का वक्त है ना, शहरी का वक्त खत्म होता ना, उसे सुबह साजिद बोलते हैं। शहरी जो करते हैं वो सुबह काजिब, शहरी जो करते हैं वो सुबह काजिब है। शहरी का वक्त जो खत्म होता है वो सुबह साजिद है, अजान होती है, सुबह साजिद होते ही अजान होती है। सुबह साजिद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सूरज के डूबने तक खाने पीने से, बीवी से हमबिस्तरी करने से रुके रहना, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, इसी को रोजा कहते हैं। बस यही रोजा है। अब ये रोजा क्या है? इस रोजे के जरिए से नफ्स की तहारत होती है, हमारे नफ्स की पाकीज़गी होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी सब पर रोजा फर्ज किया, सब पर, सिर्फ हमारी उम्मत पर नहीं है। दुनिया में जितने भी अंबिया आए, सारे अंबिया पर, सारी अंबिया की उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, इसलिए इसके नफ्स की तरबियत होती है। रोजे का मकसद मैंने बताया, तकवा हासिल करना, परहेजगारी हासिल करना। और तकवा परहेजगारी क्या चीज है? इंसान के अखलाक, इंसान के किरदार को संवारने का एक बुनियादी जरिया है। जिस इंसान के अंदर तकवा है उसके अंदर जो है अखलाक है, उसके अंदर अच्छा किरदार है, और ये इबादत के जरिए पैदा होता है। तकवा इबादतों के जरिए पैदा होता है, रोजे से, नमाज से, हज से तकवा पैदा होता है। तकवा पैदा होगा तो जाहिर बात है हमारे अखलाक अच्छे होंगे, हमारे अखलाक ऊंचे होंगे। जैसा कि रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा हासिल करो। तो भाइयों, इसलिए हमको सवाब हासिल करने के लिए जो है तकवा हासिल करने के लिए रोजे रखना चाहिए। रमजान के बेशुमार सवाब है। रोजे का सवाब किसी को नहीं मालूम, फरिश्तों को भी नहीं मालूम। हालांकि हर चीज का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोजे का सवाब फरिश्तों को तक नहीं मालूम, सिवाय अल्लाह ताला की किसी को नहीं मालूम रोजे का कितना सवाब है। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। हर अमल जो इंसान करता है, आदम का बेटा करता है, उसका सवाब उसे मालूम है, लिख दिया जाता है। लेकिन सिवाय रोजे के बंदा रोजा मेरे लिए रखता है, इसलिए उसका सवाब मैं दूंगा, उसका बदला मैं अदा करूंगा। तो रोजे का बदला अल्लाह ताला अदा करेंगे, वो किसी को नहीं मालूम। क़यामत में जब अल्लाह से मुलाकात करेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या सवाब है रोजे का। इसलिए तो रोजेदार के लिए दो खुशी का जिक्र किया गया हदीस के अंदर। एक खुशी तो रोजेदार को रोजा खोलते वक्त होती है, दूसरी खुशी उस वक्त होती है जब अल्लाह से मिलेगा, क़यामत में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा, उसका अजर सवाब देगा अल्लाह ताला रोजे का, तब खुशी होगी कि इतना अजर सवाब है रोजे का। इसलिए रोजे का सवाब किसी को नहीं मालूम, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में देगा, तब जो है इंसान खुश हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो इंसान रोजे रखता है माह रमजान के, ईमान के साथ रखता है, सवाब की उम्मीद से रखता है, उसके जो है अगले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इसमें वही बात है कि छोटे गुनाह जितने भी हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। तो रोजे का जिक्र रमजान में आया, खुतबे के अंदर रमजान के अंदर रोजे का जिक्र है। रमजान रोजों का महीना है, उसी तरह रमजान कुरान का महीना है, क्योंकि रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया। इसलिए हम रमजान में जो है कुरान पढ़ना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कुरान पर, कुरान को सीखना चाहिए, कुरान को सिखाना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। इसी की ताकीद शरीयत में आई है। रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, जो लोगों को हिदायत करने वाला है, कुरान लोगों को हिदायत देने वाला है। बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान मजीद में हिदायत की और हक व बातिल में तमीज करने की निशानियां मौजूद है। कुरान में हिदायत है, कुरान के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जिसके जरिए से आप हक को पहचान सकते हैं, बातिल को पहचान सकते हैं। रमजान के अंदर एक और चीज है दुआ। दुआ भी बहुत अहम चीज है। रमजान में दुआ का बहुत ताल्लुक है। रमजान में दुआ करना चाहिए ज्यादा से। दुआ क्या है? अल्लाह ताला के करीब करती है बंदे को। दुआ जो है
बंदे से करीब करती है। जो दूर के लोग भी वो भी अल्लाह से करीब हो जाती है, दुआ करने से अल्लाह से करीब हो जाती है। दुआ भी रमजान में आखिरी वक्त में रात में करना चाहिए। दुआओं का ताल्लुक भी रात में है। रात में आखिरी वक्त में दुआएं कबूल होती है। तो साल भर वही वक्त है। रमजान में क्योंकि हमको आखिरी वक्त मिलता है, रमजान में सब सहरी के लिए उठते हैं, जो रात का आखिरी वक्त है उस वक्त में दुआएं करना चाहिए। सहरी के वक्त में दुआएं करना चाहिए। वो वक्त जो दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह तबारक तआला से कभी उम्मीद है कि उस वक्त दुआ कबूल होती है। इसलिए भाइयों, दिन में भी दुआ कबूल होती है। रमजान में आम दिन में तो रात का वक्त है दुआ कबूल होने के लिए खासकर, लेकिन रमजान में दिन में भी दुआ कबूल होती है। क्यों? इसलिए कि रोजे की हालत में दुआ कबूल होने का शरीयत में जिक्र है। रोजे की हालत में दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। बंदा दिन में रोजा रखता है, रोजे की हालत में इंसान भूखा रहता है ना, उसका दिल नरम पड़ जाता है, उसका दिल साफ रहता है। भूखे इंसान का दिल साफ रहता है, तो दिल नरम पड़ता है, साफ रहता है, तो वो इखलास के साथ दुआ करता है, खुलूस के साथ दुआ करता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसलिए हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रोजेदार रात में इबादत भी करता है, दिन में रोजा भी रखता है, इफ्तार के वक्त उसकी दुआएं कबूल होती, रोजे के वक्त भी दुआएं कबूल होती, दिन में रोजा रखकर सब्र करने वाला बन जाता है, रात में नमाज पढ़कर इबादत करके खाना पीना खाकर शुक्रगुजार बनता है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें खाता है रमजान में। 11 महीने में वो नेमतें लोग नहीं पाते आमतौर पर, मालदार हो या गरीब हो, कोई भी हो, उतना एहतमाम नहीं करते खाने पीने का साल भर जितना इफ्तार में करते हैं। तो इफ्तार के बाद ऐसी ऐसी नेमतें इंसान खाता है, खाकर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। दिन में भूखा रहकर सब्र, रात में खा पीकर शुक्रगुजार बन जाता है। तो ये सारी नेमतें रमजान के अंदर बताई गई। रमजान के महीने की बड़ी बरकतें। तो रमजान के अंदर एक और बात है, उम्रा करने की भी फजीलत है। उम्रे की फजीलत यह है, रमजान में जो कोई उम्रा करता है उसको हज का सवाब मिलता है। रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। रमजान के अंदर एक और चीज, अल्लाह को याद करना, जिसको जिक्र बोलते हैं, जिक्र इलाही भी इबादत है। माह रमजान के अंदर जिक्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला उसको अपने पास जो मौजूद फरिश्ते हैं उन फरिश्तों के सामने याद करता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला याद करे, जो समझता है वो समझता होगा कि अल्लाह मुझे याद करे, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला हमको याद करेगा। जो इंसान अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में मजबूत रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, और भी जितने भी जिक्र अस्कार, बहुत सारे छोटे छोटे जुमले हैं, ये पढ़ता रहेगा। ये तो हमेशा पढ़ सकते हैं आप। इसे वजू की भी जरूरत नहीं, तहारत की भी जरूरत नहीं, इसे फ्री होने की जरूरत नहीं है। आप काम करते करते पढ़ सकते हैं। आप बिजी हैं, काम कर रहे हैं, काम करते करते चलते फिरते पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ सकते हैं। सब चीजें जिक्र करेंगे, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और जो इंसान अपने आप को जिक्र में मजबूत रखता है वो बेकार कामों से बच जाता है। जो इंसान जिक्र नहीं करता वो क्या करेगा? फिर या तो चुगली खाएगा, गीबत करेगा, गांव मोहल्ले की बुराइयां बयान करेगा। या तो अल्लाह का जिक्र करना है जुबान से, या तो गांव मोहल्ले की बुराइयां करके गुनाह बोलना है। दो ही काम इंसान करा, और कोई काम जुबान से नहीं होता। जुबान से और कोई काम नहीं होता, समझ मेरी बात। तो इसलिए हमें अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में मजबूत रखना चाहिए ताकि बुराइयों से हम बच सके। कोई भी काम करते उसको कंप्लीट मुकम्मल तरह से करना चाहिए। आप लोग ताजिर, आप लोग ताजिर मुख्तलिफ किस्म की तिजारत करते हैं, आप माल लेते कहीं से भी, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से माल उठाते हैं, तो आप क्या करते हैं? माल को चेक करते हैं, ऐसे ही बंद करके वो दुमूटे में रहता है लेकिन नहीं रहते। आप एक एक माल को भी देखते हैं, चेक करके उसमें क्या फॉल्ट है, आयब क्या है। हाँ, कपड़े का ताजिर कपड़े के हिसाब से देखता है, और भी मुख्तलिफ किस्म के आलात है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसके क्या क्या आयब है वो सब देखते हैं, देखकर चेक करके लाते हैं। वो चीज कंप्लीट होना चाहिए, कोई आयब नहीं होना चाहिए। तो हम जो इबादत करते हैं, चाहे रोजा हो, जिक्र हो, नमाज हो, कुरान हो, हमारी इबादतें भी कंप्लीट होना चाहिए। हमारी इबादतों के अंदर भी कोई कमी, कोई नक्स, कोई आयब नहीं होना चाहिए। ऐसे इबादत करना चाहिए, क्योंकि जब माल में आयब हो आप रिजेक्ट नहीं करते, आप उठाकर फेंक देते, नहीं ये धागा बराबर नहीं है, ये तुम्हारा मॉडल बराबर नहीं है, जो भी बताकर उसको रिजेक्ट कर देते। तो अल्लाह ताला भी
जन्नत ऐसे ही देने वाला है क्या? हम कैसे क्या उल्टी सीधी इबादत कर ले? हमारी इबादत को चेक करेगा ना अल्लाह ताला भी, हमारी इबादत को चेक करेगा कि हमारी इबादतें शरीयत के मुताबिक है या नहीं। पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उस तरीके के मुताबिक हमारी इबादत है कि नहीं है? जन्नत देने वाला ऐसे ही दे देगा? नहीं, हमारी इबादत को चेक करके पास करके जन्नत देगा। तो हमारी इबादतों में कोताही कमी नहीं होना चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। अगर है तो दूर करना चाहिए, बचना चाहिए। हमारी इबादतों को कोताही से बचाना चाहिए, कमी से बचाना चाहिए, ऐब से बचाना चाहिए। पूरी हिफाजत के साथ इबादत करना चाहिए। रोजे की दूसरी तरह हिफाजत करना चाहिए। कोई गुनाह का काम रोजे की हालत में नहीं करना चाहिए। खुतबे के दौरान बातें नहीं करना। भाई बाहर जो हजरत बातें कर रहे हैं, बराए मेहरबानी बातें नहीं करना। जुमा के खुतबे के दौरान बातें नहीं करना हराम है। इशारा भी नहीं करना, बातें तो दूर की बात, एक दूसरे को इशारा करना भी हराम है। तो बहरहाल जुमा के आदाब में से अदब ये है कि बातचीत नहीं करना, इशारा तक नहीं करना किसी को, सिर्फ इशारा उंगली से भी करना जायज नहीं है। बातचीत तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता रहा था कि अपनी इबादतों की हिफाजत करना चाहिए गुनाहों से, बुराइयों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इज़ा काना सौम यौमि अहदिकुम फला यरफस वला यसकब, तुम में से जो इंसान रोजे की हालत में हो उसको जो है बेहुदा बातें नहीं करना चाहिए, गंदी बातें नहीं करना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़ाई झगड़े के लिए आता है, गालियां देता है, तो रोजेदार को कहना चाहिए मैं रोजे से हूं भाई, मैं तुम्हारी गाली का जवाब नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी लड़ाई का जवाब नहीं दे सकता। रोजे की हालत में गाली देना, लड़ाई करना जायज नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। तो रोजे के समानों से बचाना, ना गाली देना है, ना झगड़ना है, हिफाजत करना अपनी, वरना हमारा रोजा जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रोजा रखकर हम सब काम करते रहेंगे, झूठ बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, गालियां देंगे, आम हालत में जो करते हैं साल भर, रोजे में भी वही वही बुराइयां हमारे अंदर रहेगी, हमारा रोजा रिजेक्ट हो जाएगा। समझ मेरी बात? तो हम अपनी इबादतों की हिफाजत करें। मुसलमानों, नेकी नेकी कब करता है इंसान? जब अल्लाह से मोहब्बत हो। और अल्लाह से मोहब्बत में इंसान जब नेकी करता है, नेकी करने के लिए इखलास होना चाहिए। और हम जो अमल करते हैं, अमल का मकसद अजर सवाब को पाना चाहिए। अल्लाह ताला के पास अजर सवाब पाना, अल्लाह को राजी करना, ये मकसद होना चाहिए। दो मकसद, एक तो नेकी करने का मकसद क्या है? अजर सवाब। दूसरा है कि अल्लाह को राजी करना। जब ये दो मकसद हमारे सही होंगे, हमको अल्लाह ताला की मग़फ़िरत भी मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल को कबूल भी करेगा। इसलिए हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करें, सवाब की उम्मीद से जो है हम जो है नेक अमल करें। रोजेदार को चाहिए कि अपनी औलाद की, अपनी बीवी की फिक्र करे, उनको भी जो है इबादत में, रोजों में, नमाज में लगाए। जाहिल लोग या दीन से जो दीन से दूर है, ऐसे लोगों की भी रहनुमाई करना चाहिए रोजेदार को। घर में जो छोटे बच्चे या मोहल्ले गांव में जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी जो है तरगीब दिलाना चाहिए रोजा रखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, और हर वो काम करने के लिए। बीवी, बच्चे, समाज के छोटे लोग या जो भी दीन से दूर है, उन सबको रोजेदार का फर्ज बनता है ऐसे अमाल की तरफ वो आगे लाए लोगों को, जो अमाल इंसान को जन्नत में ले जाते हैं, जो अमाल इंसान को अल्लाह की रजामंदी दिलाते हैं, जो अमाल इंसान को अल्लाह की मग़फ़िरत दिलाते हैं। ऐसे अमाल की तरफ सबकी रहनुमाई करना चाहिए, रोजेदार का फर्ज बनता है। जब हम नेक अमल कर रहे हैं, हम घर वालों की भी फिक्र करना चाहिए, ऐसे मुसलमानों की फिक्र करना चाहिए जो अमल से दूर है, नेकी से दूर है, उनको भी नेकी के करीब करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को माह रमजान में अपने कीमती वक्त को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रोजा रखने, नमाज पढ़ने, क़ियामुल लैल, तरावी की नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें माह रमजान नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो जिंदा है, जो मर चुके हैं, मर्द हो औरत हो, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। हमें जो बीमार है, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमें जो बेरोजगार है, अल्लाह ताला रोज़ी के मौक़े अता फरमाए। दुनिया भर में जो मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों को नाकाम बना दे। अल्लाह ताला मुसलमानों को, इस्लाम को इज्जत अता फरमाए। आमीन। नफ़अनी अल्लाहु व इय्याकुम बिल कुरानिल करीम व बि हदीस सय्यिदिल मुरसलीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.